quickly brief about the group discussion. So group discussion basically you have to be do between 8 to 9 people, right? 8 to 9 people के बीच में आपको एक random specific topic को discuss करना होता है. That is the group discussion, right? That is usually coming in sale also and in another PSUs and all like that, right? For the campus placement also and all like that. Now group discussion में दो लोग specifically basically होते हैं. One is for introduction, one is for conclusion, right? One person will introduce the group discussion topic and one person will conclude all over the GM. That is conclusion, right? And rest, all of we guys will be participating in between the body. I would say when we have to be give our opinion, pointers, ideas, right? Now, what is the format of introduction? जो भी पर्सन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन करने का इनिशिएटिव लेता है दैट विल बी टेकिंग +1 मार्क, +1 पॉइंट उसको मिलता है, राइट? एंड नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ इंट्रोडक्शन? It's basically your like greetings, then your name of the discussion topic. After that, I would say meaning, definition of any generic view about the topic, group discussion topic. Number 4, your point of कि आप उस टॉपिक को पढ़ के सुन के बता के आप उसके किस डायरेक्शन में जाना था. यू वांट टू गो विद द पॉजिटिव वन, यू वांट टू गो विद नेगेटिव वन, something like that, right? And last but not least is open the house for discussion. So these 4 to 5 important things you need to be keeping in mind while starting your group discussion and while you're giving your intro of GT. Am I clear, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please write down the topic, everyone. Youth in politics. प्लीज स्टार्ट करो गाइस, टाइम का ध्यान ही नहीं रखते आप लोग. Good morning, friends. My name is Ankush Kasodhan. I am glad to start the group discussion as the today's topic is the youth in politics. This is the topic of the current relevance. In my point of view, there is a requirement of the youth in the politics as the youth of our country is the educated and they have ability to take a good decision. They have ability to manipulate the people. Instead of that, youth is the future of our country. So I invite all of you to participate in the group discussion. I As agree. you said agree that with you. youth is the future of our country, so don't you think that the youth in the politics, it would be the beginning of violence at a very young age? Basically, youth is a phase that defines one's identity. So when they get involved in the politics, we see that college politics and all that. mm, No, youth is if youth is going to involve in the politics, they are much educated. They have a very good decision ability. Instead of that, the politician which is not educated, as also youth in our country are able to handle the social platform. They also have ability to manipulate the power as well. So I think there is a good if youth is going to involve in the politics. That is I Yes, I true. agree agree. with But I you. talking agree about the with you, awareness, friend, Because that see, youth in participation the is a politics. different thing, but the rise of gangsters and all that, like basically they used to manipulate the youth, they used to brainwash them. What about that? I agree Like, with being Ankush that educated and like you are basically telling that you are educated, so that is what being educated is a different thing. I But agree if with you I agree with you, yes. Ankush, that the youth in politics is good thing by electing youth as a leader in the politics. We can youth can understand the problem of a youth that the and it can वो इनोवेटिव और नया सॉल्यूशन भी खोज सकता है जो आजकल के जो प्रॉब्लम है उससे वो इनोवेटिव नए नए और इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्यूशन उसे खोज सकता है जो कि ओल्ड एज वाले पॉलिटिशियन से नहीं हो पाता है सो दैट वो यूथ यूथ इन पॉलिटिक्स ज्यादा अच्छा है. yes, I agree with you that today's generation are more engaging in the social platform
and technology they can use better than the older generation, and they are more creative and can innovate more ideas than the older generation. So I think youth can participate more in the politics, and for that government can initiate some some schemes also, so they can involve in that. Yes, I definitely agree with Yes, Naina. You have given a great point, which is of great relevance. But the youth will also engage in giving the solution which are of current relevance. The modern problem needs a modern solution. So youth will be engaged in giving the solution. We have seen that as the technology is changing, as the changing era, we should need a modern solution. And if we youth in the politics will itself gives us the solution related to problems in the new era. And they are also more social than the older generation. Mainly, Like they can make friends easily and represent us on global level. And also they believe yes, in the yes. smart It is work all. rather than the hard work. mainly the It is, problem is that many of the bureaucrats in the present government is also like youth only, and we can see the example of like Ashwini Vaishnav also, that he is the like RS and IS collector and engineer holding the post of qualified as an engineer, and he is working as a yes, bureaucrat in the Ministry of Uh, Government. yes, yes. Your point is right, but according to me, there is one thing. Youth in politics, that means भारत की जनता, जो कि भारत का यूथ है, वो आगे जाके भारत जैसी डेवलपिंग कंट्री का एक तरीके से फ्यूचर ही है। तो मेरे हिसाब yes, से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यूथ इन पॉलिटिक्स में जितनी ज्यादा अपने युवा हैं, उनका पॉलिटिक्स में भागीदारी होना। उसमें ये नहीं है कि ओनली लीडरशिप ग्रुप है, इसमें ये भी है कि कितना वोटिंग परसेंटेज है, क्योंकि एक युवा ही देश की दिशा को तय करेगा इन फ्यूचर। भारत जैसी डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाने में देश के युवा का सबसे बड़ा योगदान है। तो जितना ज्यादा यूथ इन पॉलिटिक्स मीन्स उसका वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा, वो भी देश के विकास को तय करेगा। लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये भी आता है कि जैसे जैसे yes, जो रूढ़िवादी नेता हैं और जैसे पुरानी सोच के जो नेता हैं, वो आज भी यही सोचते हैं कि जो युवा है उसको मैनिपुलेट किया जाए। लेकिन जितना जितना कंट्रीब्यूशन युवा का बढ़ेगा इस पॉलिटिक्स के अंदर, तो वो उस रूढ़िवादी नीतियों से बाहर आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में अपने नए नए नेता हैं, जैसे कि एक रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान में 26 साल का जो युवा एमएलए है, वो क्या है कि लोगों की जो एकदम वास्तविक स्तर पे जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को एज कंपेयर टू पुराने नेता के हिसाब से, जो कि ओल्ड हो चुके हैं, ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और तथा उनकी जो सॉल्यूशंस है उनको भी अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। yes, Yes, you I are right. agree with As it you. is also seen that Like the many politicians nowadays are not much educated. They only depend upon their bureaucrats. If youth will be in the politics, he will be educated and he will be able to take a good decision. He will not depend upon the bureaucrats. If a person is if a person is a Ministry of Finance, he does not know about the finance, how he will take the good decision. If a person knows about the finance, he will take a good decision. So if a youth is going to involve in the politics, he will take a good decision. Considering the present scenario, we can point out that the involvement of ideas is important to be taken from the youth, because old generation has to be dependent on new generation only, because we can take the examples of like colleges in IITs and like in UG and PG also, that the elections are conducted every year. The main purpose of this is to that introduce the Yes, students towards the like somehow about the politics and how the work things work, and how the events and organized at a particular level. So this is the main criteria that I think youth importance of youth is there in politics. यस यस, यू आर yes, राइट, yes, बट I आई थिंक think I agree with you guys. पॉलिटिक्स के अंदर Without महिलाओं की anything. भागीदारी बढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी ज्यादा महिलाएं, युवा महिलाएं अपनी पॉलिटिक्स में आएंगी, वो उतना ही देश के विकास के लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि जो कुछ जैसे पुरानी नीतियां हैं, पुराने नेता हैं, उनमें अभी भी जो महिला सुरक्षा के अकॉर्डिंग जो कानून है, उनकी सुरक्षा है, उनकी एजुकेशन है, वो अभी भी पीछे है। लेकिन जैसे जैसे यूथ में महिलाएं पॉलिटिक्स में भागीदारी करेंगी, वो देश के विकास के लिए उतना ही सहयोग होगा। yes, 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 I yes. agree with you. I agree Today's with you. generation also can relate more with the youth if they
they are in the politics and make policies. There are some differences in the thinking of the older generation and the young generation. So the upcoming generation that are coming, that can relate with the youth more. So And I मैं basically think there is a, like मैं a आपकी बात conflict से of सहमत ideas between the like old generation and new generation. Like before there is no AI and machine learning was there, but yes, new generation knows how to tackle with new technologies and how to handle the new equipments and how to manifest the in the public and how to encourage the public. That I Yes, think but that if is the main important role of the youth. but it also have a negative point. If he knows the technology more, then it's also a negative point कि वो उसका misuse भी ज्यादा कर सकता है as compared. I Misuse agree. is I always agree there, with you, but friend, that if a youth come in politics, अगर वो politics में आता है तो वो जल्दी ही मैनिपुलेट हो सकता है और अपना पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि किसी को धमकाने में या किसी से गलत काम करवाने में, सो डैट वो अपना उनका माइंड जल्दी से चेंज हो सकता है पावर में आने के बाद, सो डैट there are The always a mind cons of other changing is side also, that if someone is there in आजकल ये भी politics, then he can, but we have to focus on how he can develop an improvement for the welfare of the society, not that he is misusing his power. We can yeah, think yeah. that and the it's youth आजकल has not the more only power the and more more ideas to innovate and to make awareness among the people. We can take the examples of many like IS and RPS and IPS who has working as politicians after they resigning from their post, and they are doing their jobs in good way. Yes, and the आजकल manipulation is ये भी not देख लो only done by आजकल the youth, they can also be done by the older generation. It doesn't matter whether he or she is a youth or not. Manipulation can be done by anyone. So it's not about that only youth can manipulate or misuse the power. Anyone can misuse the power. And even a youth can also be a successful leader, or he can also be successful in politics. आजकल But ये भी देखा जा youth, रहा है कि but I want to add some point here. Youth is small in age, but so that it can easily deviate in mind as compared to the older ones, which have some experience, will not able to manipulate their mind easily. So youth in politics I am not telling that it is not good. It is good because modern problem needs modern solution, but their mind can easily change and their mind can goes in wrong direction. That's why I am telling that youth But in yes, politics is yes, I agree with you. we can't Yes, I agree with you. tell As the youth youth have a is less right or experience in wrong. the politics, so they can easily be manipulated. Instead of it, it is also seen that in the entire country, the people of India, Indian citizens are looking forward a new face in the politics. They are getting attracted by the new face. Like if we're talking about Chirag Paswan, many people are following Chirag Paswan like Akhilesh Yadav, and so many people are tending towards Akhilesh. So in Indian scenario, it is seen that the Indian citizen looking forward for a new face in the politics. They are getting bored about from the old politicians. और यहाँ पे जो सबसे मेन इश्यू है ना वो है यूथ इन पॉलिटिक्स मींस कि यूथ का भागीदारी पॉलिटिक्स में बढ़ाना, न कि उसमें सिर्फ लीडरशिप क्वालिटी है। उसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि जो देश का मैक्सिमम वोटिंग परसेंटेज है वो युवा है। अगर युवा की भागीदारी बढ़ेगी तो ही देश का विकास होगा। तो इसके लिए सरकार को भी इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम बढ़ाने चाहिए तथा लोगों को भी इसमें है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जो युवा डिसाइड करेगा वही देश के विकास में आगे डिसाइडिंग फैक्टर होगा। Yes, I agree with you. युवा ही देश का फ्यूचर है. I agree also. Guys, conclude. Thank you, everyone. This was a very fruitful session. I am Ankita Singh, and I'm going to conclude this topic, youth and politics, on behalf of everyone. So I would like to start with this quote that youth is the future of the country. Now, after the discussion, we come to the following conclusion: like youth understands the problem of the youth and are educated, so their participation in politics is beneficial for our country rather than the
old or either the older generation or the previous generation. Only youth of our country has the potential to challenge the government, and also they have the potential of creating the innovative solution, and they are also well aware of the technology, so they can, and also they are very creative, so they can be like, if their participation in politics increases, it would be the beneficial of our country. Also, youth can relate more with today's generation's problems, so they can give better solutions rather than someone who are not well aware of it. That's all from my side. Thank you. Hunter. Done? पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग, है ना? कहीं जा रहा था ट्रैक, कहीं कुछ और ही डिस्कशन हो रही थी एक्चुअली. आई एम नॉट अवेयर अबाउट द टॉपिक. हाँ जी दानिश, व्हाई आर यू लाफिंग? You are smiling for the last 2-3 minutes. What happened? वो मिस हो गया था टॉपिक इनिशियली, इसलिए थोड़ा डीले. किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो? सेल के लिए. IOCL मिस हो गया 0.2 से. क्या हो गया? इंडियन ऑयल मिस हो गया 0.2 से. हाँ, क्यों हो गया वो? इंटरव्यू थोड़ा नर्वस हो गया था मैं. तुम अच्छा तो नहीं कभी है. नर्वस नहीं होते थे. इतने जीडीज नहीं, लगाए हैं, इतने इंटरव्यू दिए. मैंने जीडी अच्छा दिया, जीटी अच्छा हुआ. इंटरव्यू में मैं थोड़ा, मेरे को उधर रियलाइज हुआ इंटरव्यू की ज्यादा प्रैक्टिस करनी थी. जीडी जीटी तो आसानी से निकला, मतलब उसका, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में मतलब मुझे 0.2 के मार्जिन से रोक लिया. फाइन. गाइस, टॉपिक वाज यूथ इन पॉलिटिक्स. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई टॉपिक होता है, ऑलवेज गो थ्रू द फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल थिंग्स, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव. ऐसे नहीं चलते रहो, कुछ भी डिस्कशन करते रहो. देयर इज अ वे, देयर इज अ फॉर्मेट, देयर इज अ स्ट्रक्चर टू डिस्कस ओवर अ टॉपिक. एंड आई थिंक यू गाइज आर मेच्योर इनफ टू थिंक कि अच्छा यार ये चीज है, तो इसके फायदे पहले बोले, नुकसान पहले बोले, या क्या पहले बोले. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बंदा इंट्रोड्यूस करता है उसको एक अच्छी डायरेक्शन देने का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तभी आपका एक वो इंट्रो अच्छा माना जाता है. ठीक है. यूथ इन पॉलिटिक्स का व्हाट डू यू मीन बाय यूथ इन पॉलिटिक्स? यूथ इन पॉलिटिक्स बेसिकली कि वी आर द यंग प्रोफेशनल्स एंड वी आर द यंग यूथ बेसिकली. सो हाउ वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन पॉलिटिक्स. अगर हम में से कोई होता है तो फिर वो कैसे बेसिकली डायरेक्शन देता है एंड ऑल लाइक दैट, वो आपको बोलना था. अंकुश, आप हमेशा इंट्रोडक्शन करने का चांस लेते हो, लेकिन आपका इंट्रो खत्म हो जाता है ग्रीटिंग्स पे, नाम पे, टॉपिक का नाम बता दिया अपना. वो जो बीच की दो चीजें इंपॉर्टेंट होती, एक तो मीनिंग डेफिनेशन में से एक चीज और एक पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों चीज आप मिस कर देते हो, मतलब अच्छी नहीं बोलते हो बेसिक. ठीक है. उसके अलावा अंकिता, अंकिता, ओवर यूज ऑफ एनीथिंग इज बैड एंड दैट इज क्वेश्चनिंग. यू ऑलवेज पुट टू क्वेश्चन इन फर्स्ट अटेम्प्ट. आप अंकित अंकुश को, जैसे उसने अंकुश ने बोला, तो आप पहली बार में उसको क्वेश्चन कर सकते हो. ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, लाइक दैट. तो इट शुडंट बी डिबेटेबल. yes, you can take it as debatable, but you know you cannot take it debatable as 100%. कि हाँ बस मैंने तो क्वेश्चन पूछ के पासे मारना है, सब एक ढेर हो जाने हैं. और होता वही है, आपके क्वेश्चन सुन के सब लोग ऐसे क्वेश्चन मार्क्स थे कि व्हाट शी इज आस्किंग एक्चुअली, बिकॉज एवरीबडी इज इन डिस्क्रिप्टिव मैनर कि हम ये बताएंगे, हम ये बताएंगे, ये पॉइंट देंगे, एंड आपने क्वेश्चन बोल के साइड ही लगा दिया जी. ठीक है. तो वो जो क्वेश्चनिंग वाला पार्ट है ना, वो तब आता है जब आपके पास एंटर करने के लिए, बोलने के लिए कुछ नहीं होता. क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, क्वेश्चन मैं पूछूंगी, मेरा कंट्रीब्यूशन होगा, मेरा नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन काउंट होगा, और एक अच्छा डोमेन और एक अच्छी डायरेक्शन मिलेगी जीडी को, और बाकी के सब लोगों को एक आंसर मिलेगा कि हाँ कैसे करना है. रेडी सर, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए, आपकी बहुत वॉइस आ रही है. ठीक है. तो ओवर यूज ऑफ एनीथिंग इज बैड. इसको जीडी को, चाहे जीडी को, टेक इट इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर कि व्हाट डू यू थिंक रिगार्डिंग दिस टॉपिक. जैसे नैना,
बहुत फ्लेक्सिबली अपने पॉजिटिव पॉइंट्स दे रही थी कि अगर ऐसे यूथ आता है पॉलिटिक्स में तो ये होगा वो होगा। दौलत ने अच्छे पॉइंट्स दिए, सुमन भारती ने काफी अच्छे पॉइंट्स दिए कि ऐसे होगा वैसे होगा। अंकुश के भी बारे में पॉइंट्स ठीक थे। दानिश ने एक आधा पॉइंट बोला। दानिश का जो वे ऑफ वो रहता है वो भी उसका थोड़ा सा क्वेश्चनिंग टाइप रहता है कि मतलब वो एंड नहीं होता है, उससे एक नया पॉइंट निकलता है एंड दैट इज गुड थिंग। चलो समवेयर, बट कि समवेयर यू नीड टू बी सेड, कोई आपके पॉइंट से एग्री तो करे कि ऐसा एग्री डिसएग्री। आप ही दूसरों के पॉइंट से एग्री डिसएग्री करो। अंकिता दानिश से एग्री कर रही थी, दानिश अंकिता से एग्री कर, और कोई किसी से एग्री डिसएग्री नहीं कर रहा था, राइट। जो रेडमी है या जो भी आपका नाम है सर, आप बोल ही नहीं रहे थे। गणेश कुमार जी भी नहीं बोल रहे थे इतना ज्यादा। ओनम ने एक पॉइंट दिया, उसके बाद वो भी नहीं बोला। ठीक है, चार पांच लोग तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द टॉपिक थे, वो बोल ही नहीं रहे थे। चार पांच लोग बोल रहे थे तो वो इतना तगड़ा बोल रहे थे कि कोई टॉपिक के कहीं कहीं जा रहा था वो हवा में, राइट। तो इट शुडंट बी लाइक दैट गाइस। आई नो आईओसीएल एचपीसीएल के बाद हम बहुत दिनों बाद जीडीजीटी करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है प्रैक्टिस और लाइक दैट, ठीक है। बट जितने जीडी दानिश ने लगाए हैं ना, मेरे को लगता है वो आंख बंद करके जीडी चलेगा तो भी उसके फुल नंबर आएंगे। क्योंकि मैं ही थी वहां पे जहां पे ये दानिश था। इसने इतने ज्यादा जीडी दिए हैं ना, इतने ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि उसका कहीं भी सिलेक्शन हो जाता। इसने सिर्फ मार खाई अपने इंटरव्यू में। इसने 3-4 इंटरव्यूज लगाए सिर्फ एचआर, अगर ये वही 10 लगा लेता ना हर मिनट के साथ दो दो, तो इसका सिलेक्शन हो जाना था। तो आपको हर चीज की प्रैक्टिस एक नंबर तक इस हद तक करनी चाहिए कि एटलीस्ट यूर कॉन्फिडेंट। नाउ ही इज सेइंग उसका एक्चुअली इसलिए मिस हो गया था टॉपिक। आज उसका जीडी बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसका पार्टिसिपेशन वाज नॉट गुड। आई एम नॉट सेइंग कि आज उसने अच्छा बोला, व्हाई, बिकॉज उसको स्टार्टिंग में ही जीडी मिस हो गया, उसको पता ही नहीं था कि टॉपिक क्या है। मैंने उसको 10 मिनट बाद टॉपिक बताया यूथ इन पॉलिटिक्स, तो जो उसने सुना वो उसने बोला, राइट। और गाइस जो आप लोग इतने दिनों से जीडी लगा रहे हो या किसी का, चलो सेकंड, जैसे दौलत है वो बहुत एक्टिव है, उसने सेकंड थर्ड जीडी लगाया आज मेरे साथ, सेकंड ही लगाया, ही इज वेरी एक्टिव। और उसको ये भी पता था कि टॉपिक क्या है, कि गाइस यूथ इन पॉलिटिक्स टॉपिक है। वो बार बार आपको प्रेशर देके बोल रहा था, बट नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। सी, जीडी है, आपके अपने परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, बट गाइस यू नीड टू बी कोलैबोरेट विद योर टीम एज वेल। यार वो एक्स वाई जेड बंदा बोल क्या रहा है। अंकिता के पॉइंट्स अच्छे थे बट क्वेश्चनिंग ज्यादा थी, ठीक है। दौलत के पॉइंट्स अच्छे थे, 2-3 बार ही बोला, बट अच्छे पॉइंट थे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे कि वो क्या चाहे उसने हिंदी में बोला इंग्लिश में बोला, नॉट अ प्रॉब्लम। दानिश ने जो एक आधा पॉइंट बोला वो अच्छा था, बट वो कहीं सिर पैर था उसका, क्योंकि उसने एक दूसरे बीच में बोलना शुरू कर दिया। ओनम ने एक पॉइंट दिया, दैट वाज गुड। नैना के 2-3 पॉइंट थे, दैट वाज गुड, बट उसके अलावा कोई कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं थी। सुमन भारती ने जो 2-3 पॉइंट बोले वो भी अच्छे थे, बट बाद में उनको कोई एंड नहीं मिल रहा था, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही थी कि मैं अब आगे किस वे में बोलूं, राइट। ये जो टॉपिक था यूथ इन पॉलिटिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज नीड टू बी डिस्कस दैट व्हाट डू यू मीन बाय यूथ इन पॉलिटिक्स, ठीक है। एंड विच यूथ, 18 साल का बच्चा तो नहीं ना बन सकता। आपको पता होगा एमएलए एमपी या कुछ भी बनने के लिए एटलीस्ट 25 ईयर्स तक की एज होनी चाहिए, 21-25 ऐसा कुछ, है ना। वो यंग माने जाते हैं, यंग प्रोफेशनल्स, यंग रिक्रूटर्स और लाइक दैट। ये तो नहीं ना कि 16 साल के बच्चे को हम इलेक्शंस में खड़ा कर दे या फिर ऐसा कुछ कर दे, पॉलिटिक्स में भेज दें, ब्यूरोक्रेट्स बना दे, राइट। ब्यूरोक्रेट्स की भी एक एज होती है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस नीड टू बी डिस्कस कि यूथ में कौन सी एज लिमिट और कौन से बेस पे बेसिकली हम यूथ को पॉलिटिक्स में डाल सकते हैं या यूथ पॉलिटिक्स में आ सकता है। ये जो कैंपस में होते हैं इलेक्शन, पीयू में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, सीयू में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, यहाँ से हूँ बेसिकली। तो ये जो होते रहते हैं इलेक्शन, ये आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि अच्छा आप पॉलिटिक्स में बड़े होना चाहते हो, बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एकेडमिक्स में यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है बेसिकली, ये छोटे छोटे चीजों से। आपको पहले वो बेसिस डिस्कस करना, ठीक है। आपकी एज फैक्टर आ गया, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका एंगेजिंग ऑफ अदर्स, ऑडियंस को इकट्ठा करना आपका काम होता है। जब आप कैंपस में जाते हो ना इलेक्शन में, तो आपको क्लासेस में जा जाके बच्चों को वोट इकट्ठे करने पड़ते हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट, कौन कितना इन्वेस्ट कर सकता है, टाइम इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, सब कुछ आता है। ये सारे बेसिस आपको डिस्कस करना। उसके बाद पॉजिटिव, क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, ठीक है। गुड डिसीजन, गुड डिसीजन इन अ डिजिटलाइजेशन मैनर, इन अ प्रोग्रेसिव मैनर, क्योंकि वो आज की जनरेशन है, उसको पता है कि आगे क्या होने वाला है। सो ही और शी विल थिंक लाइक दैट, राइट। बेटर डिसीजन मेकिंग बेसिकली। अंकुश, व्हाट आर यू डूइंग?
Ankush, are you doing something with this Zoom meeting? Why don't you? Anyway, right? So basically, these are the things that need to be discussed over there. कि creative thinking होती है या फिर young blood होता है तो he know that what we have to be do basically in general. अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जो experience है. एक चीज होती है ना कि चाहे पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ भी चल रहा हो, एक टाइम आता है when we have to make amendments. Constitution is too rigid and too flexible. Still, as per the time condition, we need to make amendments. ठीक है, वो चीज आपको डिस्कस करनी है. अपार्ट फ्रॉम दिस आता है इसका नेगेटिव मार्क्स कि यार अगर ज्यादा ही यंग आगे मतलब पॉलिटिक्स में लाइक दैट, तो उनको तो पिछली हिस्ट्री का ही जिसको नहीं पता, ऐसा नहीं ना हो सकता आपको पिछली हिस्ट्री का पता ही ना हो और आप एकदम से पॉलिटिक्स में आ जाओ. दैट कैन नॉट बी पॉसिबल. यू नीड टू बी टेक राइट दिस नॉट लाइक दैट. अभी तो आपने यंग में ऐसे बोल दिया कि जिसकी फैमिली बैकग्राउंड बड़ा तगड़ा है, इन्वेस्टमेंट अच्छा है, सब कुछ है, तो पॉलिटिक्स में चला गया एंड एक महीने 2 महीने बाद आपको ऐसा लगा दैट इट्स नॉट माय कप ऑफ टी. इट्स बेटर कि मैं अकेडमिक में जाता, कुछ लेक्चरर वगैरह बनता, कुछ अच्छी पोस्ट पे जाता, इंजीनियर वगैरह बनता, कहाँ मैं पॉलिटिक्स में फंसा. बिकॉज पॉलिटिक्स इज नॉट अ इजी गेम, इट्स नॉट कप ऑफ टी ऑफ एवरीवन. यू नीड टू बी वॉलेंटियर एवरी टाइम. आपको हर टाइम वॉलेंटियरशिप खुद करनी होती है. एक अच्छा लीडर वही होता है जिसमें वॉलेंटियरशिप की जो एक क्वालिटी होती है वो होती है. कौन से बेसिस पे यूथ इन पॉलिटिक्स, देन पॉजिटिव क्या क्या, क्रिएटिव थिंकिंग आ गया, क्विक डिसीजन एक्शन आ गया, उसमें स्ट्रेंथ वाइज भी आ गया, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ सब आ गया. ठीक है, देन योर नेगेटिव वन. ठीक है, समवेयर आई वुड से वीक डिसीजन मेकिंग. ठीक है, वीक पॉइंट कि आप उतना नहीं सोच सकते. ठीक है, विजन कितना अच्छा है, विजन एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट का ज्यादा अच्छा होता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है. एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर. यंग कोई बंदा पॉलिटिक्स में, उसके भी विजन बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन विजन उस चीज का होता है जो ऑलरेडी 5 साल से एक जगह पे टिका हुआ, वो देखे यार 5 साल बाद और मैं क्या करूंगा, समथिंग लाइक दैट. सो दिस टॉपिक नीड टू बी डिस्कसिंग दैट काइंड ऑफ मैन. एम आई क्लियर? ठीक है, यूथ कौन सी एज का क्या उसमें पॉइंट्स होते हैं, ऐसे आपको इस टॉपिक को डिस्कस करना. एंड ऐसा भी नहीं कहीं से उठा के कोई पॉइंट बोल रहा है, कहीं से उठा के कुछ पॉइंट बोल रहा है. नीड टू बी टेक केयर ऑफ दैट व्हाट यू गाइस आर स्पीकिंग एक्चुअली. डू नॉट ओवर क्वेश्चन, डू नॉट ओवर पार्टिसिपेट एंड गिव रेलेवेंट एग्जाम्पल. दानिश की सबसे अच्छी चीज ये है कि आप मुझे कोई भी एग्जाम्पल नहीं दे रहा था, और शायद अंकिता ने एक एग्जाम्पल दिया था, बट दानिश ने एग्जाम्पल दिया था साथ में. तब सुमन ने भी और आई थिंक अंकुश ने भी उसके साथ एग्री किया था कि येस यू आर सेइंग करेक्ट, कि वो ISR और जो RCS जो भी वो ऑफिसर है या ब्यूरोक्रेट से भी टर्मिनोलॉजीज आप वैसे यूज करो, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट. ठीक है, लाइक दिस काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी बेसिकली. एस्पायरेंट्स और पॉलिटिक्स और इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर्स, these kinds of vocabulary you need to be guys. Be more confident, be more participative. दौलत की अच्छी बात ये है कि वो अच्छे पॉइंट है, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको पता है कि टॉपिक यही बोलना है कि भाई टॉपिक ये है, पॉलिटिक्स में यूथ का क्या काम है, कैसे, तो वैसे टॉपिक है. बट दौलत आपने कोशिश करना है कि जो है डिफरेंट डोमेन है उसके हिसाब से टॉपिक पॉइंट और थोड़ा सा ज्यादा पार्टिसिपेट. ठीक है, तो ऑल दिस थिंग्स आई वुड लाइक टू मेंशन. आज का GD ऑन एन एवरेज था, इट वाज नॉट टू गुड कि आई कैन से कि किसी का भी बहुत अच्छा था. जिसने भी जो भी पॉइंट बोले उसमें कोई ना कोई कमियां. तो इस चीज को रेक्टिफाई करो, इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी करो एंड फिर बोलो. मैंने आपको पॉइंटर्स भी बता दिए कि जिन बेसिस पे आप बोल सकते हो और क्या क्या पॉइंट्स आपने बोलने हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए कैसे आप इसको डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, इंट्रो अच्छे से करना है, कंक्लूजन अच्छे से करना है. आप हमेशा कंक्लूजन का आप चांस लेते हो, लेकिन आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो. ओके, thank you everyone. This was a great discussion, healthy discussion, or we were divided on the topic like that. On the behalf of everyone, I would like to conclude this topic. This 3-4 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है उनको समराइज करो. राइट, Yes, ma'am. वो That सारी is चीजें why आपने I बोली. used to. हाँ जी, That is why I used to. I just want to conclude because I'm not हाँ, good at it. नहीं, दैट वुड बी इम्प्रूव, दैट विल बी इम्प्रूव अंकिता, बट इट विल टेक टाइम. मतलब 4-5 और लगाना पड़ेगा. ठीक है, फिर वो जाके इम्प्रूव होगा. बेसिक आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे पॉइंट्स बोलना है. ठीक है, नैना के पॉइंट्स अच्छे थे, बट नैना मतलब बीच में 2-3 बार उसने बोला ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और वो अच्छे पॉइंट दे रही थी, रेलेवेंट पॉइंट दे रही थी. फिर बीच में डिस्टर्बेंस होगी, कोई कहीं से उठा के कुछ बोल रहा है, कोई कहीं से, तो उसकी भी डायरेक्शन खराब हो. तो ऑन एन एवरेज दिस GD वाज नॉट जितने मैंने पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट किए थे, जैसे 9 लोग आए हुए, आप 9 से 10, एक तो भी चला गया, उस हिसाब से GD स्ट्रांग नहीं था. ठीक है, आप सेल के लिए जा रहे हो, आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, आपके आइडियाज बहुत अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है. मिनिमम टाइम सिर्फ 3 बार होता है GD में पार्टिसिपेट करने का.
3 से ज्यादा आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप 3 बार भी अच्छे से पार्टिसिपेट करो ना, दैट वर्क। ठीक है, क्लियर है, डन। नेक्स्ट जीडी के लिए सब लोग प्रिपेयर होके आना, और जो पैनल पे ऑलरेडी जीडी पढ़े हैं पिछले साल के या फिर अब, सब पढ़े वहां पे, नए भी और पुराने भी, प्लीज उनको थोड़ा सा रीड करके आना, फॉर्मेट आइडियाज थोड़ा बहुत रीड करके आना है सबने। ठीक है, डन।